अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS 2024 जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, इफ़ द सम ऑफ 4 नंबर्स इज़ 105 व्हेन 3 इज़ एडेड टू अ नंबर ट्वाइस ऑफ another number 5 times of a third number and fourth number become equal to each other, what are those numbers in ascending order? सो 4 नंबर्स के बारे में इसमें बताया गया है और हमें उन नंबर्स की वैल्यूज़ फाइंड करना है और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो अब गिवन जो डेटा है उसके मुताबिक लेट्स कंसीडर दोज 4 नंबर्स आर x, y, w, x, y and z. So let the 4 numbers are w, x, y and z according to given condition. The summation of those 4 numbers is equal to 105. So w plus x plus y plus z is equal to 105. Let's consider this is equation 1. And the second condition is when 3 is added to a number, let's say that number is w. When 3 is added to a number twice of another number, 5 times of a third number and fourth number become equal to each other. So when 3 is added to a number twice of another number, let's say that number is x, so twice of x becomes equal to what? 5 times of a third number, so 5 times of a third number, let's say third number is y, and fourth number, so fourth number is z, they all become equal to each other according to given conditions. So what we have to find here, numbers in ascending order. हमें क्या फाइंड करना है? ये 4 जो नंबर्स हैं w, x, y एंड z वो फाइंड करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सो नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. So we have to find these 4 numbers and write them in ascending order. So the easy way is that we put 3 values equal to the 4th value and find that 4th value, 4th number को हम find करें. फिर जब वो एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा उसके बाद बाकियों को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. सो लेट्स कंसीडर 3 प्लस w इज़ इक्वल टू 2x. सो सारों को 2x के इक्वल रखते हैं और 5y वो भी उसको भी हम 2x के इक्वल रखते हैं और जो है z इज आल्सो इक्वल टू 2x. सो हेयर फ्रॉम w will be equal to what? w will be equal to 2x minus 3 and y will be equal to 2x over 5 and z is already 2x. So put all these values in equation 1 where from we can find the value of x. So putting all these values in equation 1, so we get w की जगह हमें क्या रखना है? 2x minus 3, so 2x minus 3 plus x already written plus y की जगह हमें क्या रखना है? 2x over 5 plus z की जगह हमें क्या रखना है? 2x. These all values will be equal to how much? 105. So 2x plus x, this will be 3x, and 3x plus 2x, this will be 5x, and plus 2x over 5. ये यहाँ पे -3 है, सो इसको नेक्स्ट साइड शिफ्ट करेंगे.
साइन ऑफ इक्वलिटी के, तो कितना आएगा 105 प्लस 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सो 5 इंटू 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x, so this will be 2x will be equal to how much 108. सो 25 प्लस 2 27x, ये 5 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट साइड जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, सो 108 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 27x इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 27x will be equal to how much when we multiply 5 with 108, this will be 540. here from x will be equal to 540, 27x से मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड करेगा, सो 27 x will be equal to how much 27 का टेबल 54 पे 2 टाइम, so 20. so we have found the value of x. now the values, finding the values of other parameters is easy. so x is equal to 20. According to given condition, how much was z? Z was equal to 2x. At this point z was equal to 2x, so z will be equal to how much 2 multiplied by value of x is 20, so z will be equal to 2 multiplied by 20, this will be 40. and value of y was equal to 2x over 5, so here from 2 into x is how much 20 divided by 5, so 5 का टेबल हम डायरेक्ट 20 पे पढ़ते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल बी 8, सो y की वैल्यू कितनी है 8. एंड लास्ट वैल्यू जो है वो है w, सो w वाज इक्वल टू 3 प्लस w वाज इक्वल टू 2x माइनस 3, so 2 into x is how much 20 and minus 3, so 20 multiplied by 2, this will be 40 minus 3, so this implies w will be equal to 40 minus 3 will be 37. so we have found the four numbers, x is 20, z is 40, y is 8 and w is 37. but the question says we have to write these numbers in ascending order. so ascending order means first of all you have to write the smaller value, then the larger ones, so in this way you have to write all the values. so in ascending order the numbers will be, so numbers in ascending order will be equal to how much, equal to first of all you have to write 8, then 20 and then 37 and then 40, so these are the numbers in ascending order. क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इसमें फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड स्पेलिंग्स. सो जम्बल्ड स्पेलिंग्स गिवन है, यहाँ से हमें करेक्ट वर्ड फाइंड करना है. सो इसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फाइंड कर सकते हैं, जितनी आप की वो के पे कमांड है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो इनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट अप कर लिया है, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, इसमें इसका फर्स्ट है कि 121 11 81 9 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 7. सो हमें ये मिसिंग नंबर इस सीरीज़ में फाइंड करना है. फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज़ बिलो. सो द फर्स्ट वन इज़ 121 then 11 and then 81 and then 9 and there here is question mark and then 7. सो इसमें आप देखें कि 121 जो है वो है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है 11, एंड 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे अगेन क्या है 9. सो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो होगा वो 7 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है. सो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49.
So 49 is the missing number. is the missing number. इसमें सेकंड पार्ट है 100, 50, 25 and then question mark, then 6.25. सो ये भी काफ़ी सिंपल है. इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो 50 लिखा हुआ है वो 100 को, ये जो प्रीवियस टर्म है 100 को डिवाइड किया है 2 से, एंड जो 25 लिखा हुआ है तो 50 को डिवाइड किया है यहाँ पे 2 से, एंड यहाँ पे जो अभी टर्न आ रहा है तो उसमें वो क्या करेगा 25 को डिवाइड करेगा 2 से, जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करेगा 2 से, तो ये वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे क्या है कि हमें 25 को डिवाइड करना है 2 से, वो आंसर होगा. तो 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 12.5. सो 12.5 इज़ द मिसिंग नंबर. इसमें इसका थर्ड पार्ट है 4, 9, 64, 125, 12, 96 and then here is question mark. सो इसमें आप देखें कि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर एंड देन 3 का स्क्वायर, उसके बाद जो 64 है वो है 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब 125 एंड देन 1296 इज़ 6 पे पावर 4. सो यहाँ पे क्या होगा 7 पे पावर 4 होगा. क्यों? क्योंकि गिवन लॉजिक अब देखें कि 2 पे स्क्वायर है, 3 पे भी स्क्वायर है. सो 2 टर्म्स जो फर्स्ट वाले हैं उन पे स्क्वायर है, फिर 4 पे क्यूब है एंड 5 पे भी क्यूब है. सो यहाँ पे जब 1296 6 पे पावर 4 है तो उसके बाद जो टर्म होगा उस पर भी पावर 4 होगा. सो हमें 7 पावर 4 फाइंड करना है. सो 7 पावर 4 विल बी इक्वल टू हाउ मच 2401. So the missing number will be 2401 is the missing number. इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है. अब इसमें जो है इसने लिखा है 2, 5, 12, 24, 48 एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. तो यहाँ पे 5 के बाद आप देख लें कि 12 है, 12 का डबल फिर 24 है, 24 का फिर डबल 48 है. बट ये जो फर्स्ट वाले 2 टर्म हैं ये फिर अलग ही दिख रहे हैं. सो यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे 6 होता, फिर तो लॉजिक बन रही थी कि सारे टर्म्स जो है वो डबल होते जा रहे हैं. सो इसका कोई लॉजिक अभी तक मेरे माइंड में नहीं आया. अगर ऐसा कोई समझ आया तो फिर मैं वो अपलोड कर दूँगा. बाकी जो है इसमें या तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें आई थिंक. उसके बाद इसका फिफ्थ जो पार्ट है 44, 22, 66, 33 एंड 132 एंड लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क है. सो इसमें देखते हैं कि लॉजिक क्या है. 44 को डिवाइड किया है 2 से तो 22 आया, फिर 22 को मल्टीप्लाई किया है 3 से तो 66 आया, 66 को डिवाइड किया है फिर 2 से तो 33 आया, फिर 33 को मल्टीप्लाई किया है 4 से. सो नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर आंसर को 3 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड कर रहा है 2 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई. अब फिर से जो है वो 2 से डिवाइड करेगा एंड देन मल्टीप्लाई जो करेगा वो 5 से करेगा. सो मल्टीप्लाई विद 5 ही इज़ नॉट आस्किंग अस अबाउट दैट, ही इज़ आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म विच इज़ टर्म फॉर डिवीजन. सो जो अभी टर्म है हमारे पास 132, उसको डिवाइड कितने से करेगा ये 132 डिवाइडेड बाय 2. सो 132 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा आंसर 66. सो 66 is the missing number. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है. If the sum of 3 digits is 3-digit number is 15 and sum of 10th and unit digit is 12, the difference of unit digit from 10th digit is equal to
02 व्हाट इज़ द 3 डिजिट नंबर। सो एक 3 डिजिट नंबर है, हमें फाइंड करना है। तो उसके यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड करना है, बट उनके कुछ कंडीशंस इसने बताए हैं, उसके बेस पे हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि हम 3 डिजिट जो नंबर है उसको फाइंड करें। So let's consider or assume those that 3 digit number. So its unit place, let's say, is U, and 10th place is T, and its 100th place is 100H. So according to given condition, according to given condition, अब वो 3 डिजिट नंबर जो होगा अल्टीमेटली वो इस टाइप का होगा कि यहाँ पे यूनिट नंबर होगा, फिर 10th नंबर होगा, फिर 100th नंबर होगा। सो इस तरीके का वो 3 डिजिट नंबर होगा। बट उसके लिए हमें यू फाइंड करना है, टी फाइंड करना है एंड एच फाइंड करना है। सो गिवन कंडीशन है कि द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज़ 15। सो वो जो 3 डिजिट होंगे, यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है 10th प्लेस पे है और 100 प्लेस पे है, तो उनको जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा आंसर 15। सो एच प्लस टी प्लस यू इज इक्वल टू 15। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज़ 12। सो 10th प्लस यूनिट डिजिट का जो समेशन है वो कितना है 12 है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 एंड द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10th डिजिट। सो 10th डिजिट डिफरेंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू हाउ मच 0 2। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। सो इन कंडीशंस को सामने रख के हमें जो है वो यू टी और एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद फिर हम 3 डिजिट नंबर जो है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यू जो है माइनस का है यहाँ पे, तो नेक्स्ट साइड हम इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस यू। अब टी किसके इक्वल हो जाएगा 2 प्लस यू के। इसको अब हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वो है टी प्लस यू इज इक्वल टू 12। टी प्लस यू इज इक्वल टू 12। सो टी की जगह हमें क्या रखना है 2 प्लस यू। सो 2 प्लस यू इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे 2 को नेक्स्ट साइड हम शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा u प्लस यू इज 2u इज इक्वल टू 12 माइनस 2। देन 2u विल बी इक्वल टू 10। हेयर फ्रॉम u विल बी इक्वल टू 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड करेगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 2। सो u विल बी इक्वल टू हाउ मच 5। अब ये जो u की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो हमें वहाँ से t की वैल्यू फिर मिल जाएगी। सो पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे u की, तो हमें वहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे इसको करते हैं कि t प्लस यू, इक्वेशन नंबर 2 ये है, t प्लस यू इज इक्वल टू 12। सो t प्लस यू की जगह अब क्या रखेंगे हम 5 इज इक्वल टू 12। सो t विल बी इक्वल टू 5 प्लस कर रहा है यहाँ पे, उस तरफ जाके माइनस करेगा। सो t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 12 माइनस 5 इज़ 7। t भी फाइंड हो गया यहाँ पे, और अब लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है h की वैल्यू। सो t और u की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज़ ऑफ t एंड u इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे u और t की वैल्यूज़। इक्वेशन 1 ये है h प्लस t प्लस u इज इक्वल टू 15। सो h प्लस t की जगह कितना रखेंगे 7,
एंड यू की जगह कितना रखेंगे 5 इज इक्वल टू 15. सो h 7 प्लस 5 कितना होंगे 12 इज इक्वल टू 15. सो हेयर फ्रॉम h विल बी इक्वल टू हाउ मच 15. ये प्लस कर रहा है यहाँ पे 12, नेक्स्ट साइड जाके माइनस करेगा तो -12. सो h इज इक्वल टू हाउ मच 15 minus 12 is 3. So h भी फाइंड हो गया. So that 3 digit number will be u की वाली जगह पे यानी यूनिट प्लेस पे हमें क्या रखना है 5, एंड जो है 10th प्लेस पे हमें क्या रखना है 7, एंड जो है 100th प्लेस पे हमें क्या रखना है 3. सो 375 इज़ द 3 digit number. This is the 3 digit number required.